This girl randomly jumped into my vlog. Abhishek. I said hi, and that one hello turned into hours of talking and spending time together. भाई बुक स्टोर तो काफ़ी अच्छा है यार यहाँ पे, मतलब इतना फेमस भी है ये. I saw you recording something. I just did this. I saw you doing that. So what's your name by the way? Sargam Yaduvanshi. Abhishek. Nice to meet you. Delhi से ही हो क्या? No, I'm from Lucknow generally. I live in Delhi. For Nawabi. Do you come here often? No, it's my first time actually. It's your first time. I just came here to buy this book and I wanted to see what's the hype about Fakir Chand bookstore. So are you walking this side only? Yeah, I have to go. हाँ, let's walk. Because I write as well. So You right? yeah, I do. क्या किस तरह की चीज़ें लिखना पसंद करते हो? Anything I feel, I write it. Oh, anything you feel, you write it. I write Like thoughts. Yeah, everything. Any emotion I experience, let it be love, Okay. fear, anger, abandonment, anything, jealousy, anything. I write. बाप रे, इतने सारे emotions. Exactly, that is why I write because when you cannot express, you write. Yeah. So would you like to talk with me for a few minutes for my channel? I record videos about life only. Yeah. Sure, I mean, we have been talking. Why not? Let's do it. Let's do it. What do you want to talk about? What do I want to talk about? What do you usually talk about with your friends? That's a very random, random topic. I mean, we don't generally talk. We just tease each other with the thing we are going through. We Okay. make fun of the traumas and we laugh Fun of about the it. traumas. Yeah, it's बहुत really a ज़रूरी है यार. coping mechanism. Yeah. And then we play cards the whole night and we sit, talk shit about each other. Then we jam a little and then. So do you have a lot of friends? I mean, I know a lot of people. Okay. But I have very few friends. That's a very. मतलब बहुत Okay. just चीज़ है वो. I understand. But yeah, I have few friends. I would say 4 or 5 of them I would ride and die for. Oh God. इतने close friends हैं? I mean, I have been living there for quite a time. Okay. So they have been a family now. Like we are home to each other. So were you born and brought up in Delhi? No, I was born and brought up in Gorakhpur actually. I was born in Gorakhpur. Then I lived in Varanasi for 13 years Okay. with my mom. Okay. And then we shifted to Bihar because she has a government job. And then I came to Lucknow and then I have a home in Lucknow. Ah, nice. Then I Can you guess where I am from? I would say Delhi or Mumbai. No. No? हाँ मैं मतलब पुणे मुंबई में थोड़ा वक्त रहा हूँ तो शायद कहीं ना कहीं हल्का फुल्का आ सकता है बट मैं उज्जैन से हूँ महाकाल की नगरी से. Oh, I went to Ujjain. कब? Yes, last year. नहीं, ये तो 26 है ना, last year. लास्ट टू लास्ट ईयर. हाँ अभी वो ईयर खत्म हो गया, अभी यकीन नहीं हो रहा है ना कि यार 2025 चला गया है पूरा. Yes. I was there for a shoot actually. Yes. You are there for a shoot. Yeah, I was there for 12 days. 12 days. Yeah. बाप रे, इतना तो मैं नहीं रुकता हूँ यार आजकल. मैं मतलब 3-4 साल 5 साल से मैं भी नहीं रुका अभी तक इतना ज़्यादा कभी. मजबूरी थी. क्यों? I had a shoot going on there. It was a movie shoot. So I was there. मैं किससे मिला हूँ आज? ये कौन है मेरे सामने? मतलब मूवी शूट? Do you act? Yeah, I do. I act, I write, I sing, I perform. I model as well. बाप रे. तो तुम क्या सोशल मीडिया पे भी you have a channel और कुछ ऐसा है? You have a channel? Yeah, I have an Instagram page. It's just Sargam, and Okay. I post poetries on that. Sometimes singing videos. You are a poet also. Yeah. तुमने बताया था. बाप रे. Multiple talents. कुछ भी पूरा नहीं हो पा रहा है, आधा कुछ- आधा है, तो कुछ. तो किस चीज़ को पूरा करना चाहती हो? वो कौन सी चीज़ होगी जिसको तुम पूरा करना चाहोगी? I would say singing and poetry. Singing and poetry? Yeah. Okay. भीड़ ही भीड़. I think some people recognized you over there. Me? Yeah. Yeah. They should. Gosh. अरे बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे. मतलब I do make videos and talk to people a lot and I travel a lot. तो मुझे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह पे भी पहचान जाते हैं. What But has been your favorite place to travel yet? Thailand. Of course. And not of course. Okay. What you're thinking is not the because I know कि पहला thought सबका वहीं जाता है. But for me, it was Krabi Island Okay. because I met more than 100 people there. I had such good conversations with them. Oh. I also posted about it. But that was heaven for me, for a person who want to talk to strangers. Uh-huh. So I do that. was
Yeah, you do that too? I randomly compliment people. This one time I was on my balcony on the third Okay. floor, and there was this. It was morning, and I didn't sleep the whole night, and I was in a very cheerful mood. Okay. So there was this girl going to college or something, ready, okay. From the third floor, I screamed at her. I'm like, hello. She was like, yes, you look very pretty. Thank you. Bye. कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा जरिया है ना यार किसी से इनिशियल स्टार्ट करने का. Okay. She actually looked pretty. You look really pretty Oh, today. thank you so much. The jacket and the scarf and it's complete package. Takes too much effort. Too much effort. But it's a good thing, no? Dress up होके बाहर निकलना थोड़ा अपने बारे में अच्छा फील होने लगता है. Of course, it is all about that. Yeah. Yeah, I just want to dress up for me. I feel good. मुझे लगे कि हाँ, I'm worth living again. अरे? So do you have a partner or do you have someone in your life like No, that? I just broke up. You just broke up. In 1 month only. I'm sorry. Happens. 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 Yeah, it's life. Life happens. Life happens. Yeah. What do you do over the weekends mostly? I wake up and then I clean the house. Clean the house. Yeah, that is something. Have you heard the concept of not the room? Okay, so Not- it's a concept that okay. when you have so much going inside you, when you feel like it's all bubbled up and you know, ऐसे जुड़ गया है सब कुछ सुलझा नहीं हुआ है, तो you start cleaning the environment around you. Okay. So every time you pick up something, you clean something, you feel fresh inside yourself. Feel like everything is just okay, reconnecting again. सब कुछ is Okay. going in its way. So that's my way of healing. I clean my house every weekend. And then I go over the places I love. Okay. I eat the things I love. That's my routine. Like every Saturday I go to this place and I eat something there. Then I come home and all of my friends, we play cards, we jam a little, and then we watch movies or something and then we sleep. Nothing that exciting about it. Nothing. Generally. सब कुछ बता दिया इतने एक्साइटिंग चीजें और फिर बोल रही है नथिंग दैट एक्साइटिंग अबाउट इट. ये भाई ये सपना होता है बहुत सारे लोगों का कि इतना सब कुछ कर ले वीकेंड पे भी. मेरे लिए तो मतलब कैजुअल हो गया, अब तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है. But yeah, that. So how is your life going on right now? Of course you met me, so it's going good. But of course, It's of been a course. very good day, of course. In general, I would say it's been a roller coaster these few months Okay. because I was very happy and then I was in love, then I got heartbroken, then my career was going okayish, then it went on a high, Okay. then it's all right now, and then so you know, roller coaster of emotions. Okay. So I have been in one emotion for more than 2 days. Okay. Yeah, so it's like happy, sad, happy, sad, happy, sad, happy, sad. But do you agree with me that girls को roller coaster of emotions पसंद आता है ये? Of course. Because they can't feel wants a one boring emotion life? for all the time. Who wants a boring life, right? Yeah. It's like जरूरी है कहीं ना कहीं to keep the life interesting. इसका बिल्कुल ऑपोजिट लड़के रहते हैं. We don't want बहुत ज़्यादा हलचल. हमको शांत, पीसफुल, हमको सेम चलता रहेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमको रोलर कोस्टर नहीं पसंद है बहुत ज़्यादा. That's what people. That's why males and females are important for each other. People lack this thing. But males की लाइफ में फीमेल एनर्जी और फीमेल्स की लाइफ में मेल एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी है. They are meant to be together as friends, as brother, sister, whatever. Yeah. You can take it out. Yeah. So बहुत important. It's like every time I feel sad or happy about something, no, I think of it in this way कि what if my life would have been a movie? तो हाँ. देखने वाले के लिए इंटरेस्टिंग प्लॉट्स इंटरेस्टिंग होना चाहिए. I'll True. go through this ताकि जब अगर मेरी लाइफ पे कभी मूवी बने तो people should be very confusing about the emotions कि what exactly is going in this. See, I also think that. something like that कि मतलब मेरी लाइफ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ताकि मैं जब मेरा ये पॉइंट है कि मैं जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को अपनी लाइफ की स्टोरीज सुना रहा हूँगा तो यार उनको ये ना लगे कि यार ये बोरिंग थे. मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज बनानी है अपनी लाइफ में. तुम कहाँ जा रही हो वैसे अभी? मैं सीपी जा रही थी. सीपी? Yep. हाँ नाइस. मेरा होटल उधर ही है मतलब, तो मैं भी उसी साइड जा रहा था. Oh yeah, you have been traveling, I guess. या आई एम ट्रैवलिंग. सो मैंने अभी मैं मतलब पहाड़गंज में, क्योंकि मैं आया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में, तो वहीं पे मैंने ले लिया. Oh nice. How did आई एम ऑल्सो गोइंग दैट वे ओनली. coincidence? नाइस. एंड थैंक यू फॉर टीचिंग मी टिकट कैसे लेते हैं पेटीएम से. It took me a lot of time to settle in Delhi after हाँ. coming from Lucknow. Yeah. हाँ ओके. Food in comparison was
somewhere terrible. Don't hate me, people. हम लोग जा रहे हैं अभी मेट्रो में सीपी की तरफ। तुम्हें पता कैसे है कि यहाँ पे ये ट्रेन आएगी? प्लेटफॉर्म कैसे पता है तुमको? क्योंकि when you search it, no, from this to this, so it shows right here. हाँ, बट अभी तो तुमने बिना देखी बोल दिया था ना। नहीं तो I knew ना कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। अच्छा, ये देखा था तुमने। कॉमन सेंस है। I generally travel alone ही ना, इधर से उधर मैं काम के लिए भागती रहती हूँ। तो इसीलिए तुमको अभी एक्सपीरियंस हो गया है यहाँ पे। ओके। यहाँ मैं अपना विमेन कार्ड बहुत खेला है मैंने। जब मैं शूट से थक के आती थी, कोई भी बैठा होता था, I'm like प्लीज भैया उठ जाओ प्लीज, विमेन सीट है। very funny experience with that as well. हाँ, हमको शायद एक ही स्टेशन जाना है ना, हाँ वहाँ से सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से चेंज करना होगा। ओके, नाउ इट्स ट्रैकिंग यू। कब चेंज हुआ मुझे पता भी नहीं है। सीपी तो पहुँच गए, अभी हम लोग कुछ खाना खाने जा रहे हैं यार, भूख लग रही है बहुत। सीपी तुम जनरली आती हो या फिर नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं आना होता है? मैं ऐसे हाइट ऑफ प्लेसेस में ना जनरली नहीं जाती हूँ, जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है? बिल्कुल नहीं पसंद मुझे। Okay. I want a place that has शांति, some very mood lighting kind of stuff. इतनी ज़्यादा कि मुझे मतलब मेरे घर में सनलाइट का कोई सोर्स नहीं है। बाप रे, यू हेट उजाला। हेट उजाला एंड एकदम मेरे को ना किसी ने 3 पौधे गिफ्ट किए हैं। ओके, एंड द फर्स्ट डोंट टेल मी। थॉट वाज कि मैं खुद जिंदा नहीं रह पाती यहाँ पे, इनको ऐसे रखूंगी। हे भगवान। मैंने इनको छत पे रखा है बिकॉज मुझे मेरे घर पे पता है वाइट लाइट नहीं चलती, वो सिर्फ 3 Warm lights पे ऑन होती है। या तो मुझे सफाई करनी है, Okay. या तो मुझे मेकअप करना है, या तो सुबह सुबह कुछ ढूंढना है मुझे, या दोपहर कुछ ढूंढना है तब। गॉड। आई हेट वाइट लाइट। देन व्हाट? वार्म लाइट्स? या वार्म लाइट्स, फेरी लाइट्स, Okay. वार्म लाइट्स। फेरी लाइट्स क्या होता है? फेरी लाइट्स वो जैसे दिवाली वाली होती है ना ऐसे, ओके तो उसकी वही वार्म लाइट्स सारी लगी हुई हैं। ओके। लैम्प्स, डिफरेंट शेड्स, नॉट वाइट, एनी शेड। क्रेजी यार, मतलब अपना बताओ तो मेरा पूरा टाइम वाइट लाइट रहता है, फुल टाइम। अरे मेरे माय फ्रेंड्स मेक फन ऑफ मी बाय सेइंग दिस कि मेरी एक ना लव लैंग्वेज है। Okay. मैं अगर मेरे बगल में कोई लेटा हुआ है ना, हाँ. एंड दे आर स्लीपिंग और ट्राइंग टू स्लीप, और हाँ. जस्ट देयर हाँ. बिसाइड मी, आई स्टार्ट डूइंग देम हेड स्क्रैचेस। हाँ, ओके। ठीक है, तो अब पीपल माय फ्रेंड्स से दिस कि सरगम को जिस पे ज्यादा प्यार आता है सरगम उसको सुला देती है, एंड दिस हैज बिकम अ थिंग नाउ। मेरे घर में जो आता है वो सो जाता है, because it's such a cozy setup and everything. कोजी, हाँ ऑफ कोर्स, वार्म लाइट्स मतलब बहुत ही कोजी रहता है यार। और वो पूरा ऐसे रूम भी बहुत ऐसे कोजी एस्थेटिक सा है, तो कोई भी आता है प्ले म्यूजिक, मतलब गाने तो चलते ही रहते 24 घंटे, एंड दे जस्ट स्लीप, दे स्लीप। इस साइड यप, जैन चावल वाला पे खाने जा रहे हैं हम लोग। राजमा चावल। राजमा चावल, अरे उसके यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं हाँ, शायद। कड़ी चावल, राजमा चावल से बहुत सब कुछ है, बस ये दोनों चीज़ें उसकी ज़्यादा फेमस हैं। हाँ, मेरा सिर्फ एक सपना है कि Okay. मेरा एक घर होगा, घर। ठीक है। ओके And by घर, I don't mean a very big house with a lot of people, servants and all that. ओके। I want a home हाँ, that feels like home, जिसमें किसी मर्द की आवाज़ ना उठती हो, कोई हाथ ना उठाता हो, ओके। people talk quietly, slowly, सुबह शाम फूल होते हो, खुशबू आती हो, गाने चलते हो, गज़लें चलती हो, ओहो हो। और हाथ से खाना बनाते हैं सब लोग, मतलब obviously they can take help, हाँ, but I like to cook for my people. ऐसे मैं हाँ. आलस कर लेती हूँ, Okay. अगर मुझे किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे हाथ का वो खाना है, I'll definitely cook for them. Middle of the night I'll cook for them. ओके And a place that जो भी आए ना, they feel like home in there. Okay. कि because मेरी आदत है कि I invite friends over. मेरा घर संस्थान बन जाता है कि कम से कम 4-5 लोग पड़े रहते हैं शाम को, बाप सुबह। रे, कंप्लीट ऑपोजिट। Yes. कंप्लीट सीधे जाना है हाँ, सीधे जाना है। उधर। ओके, क्रॉस करते हैं। कंप्लीट ऑपोजिट। हाँ, मेरे घर में एक इंसान नहीं मिलेगा तुमको, नहीं, और सुबह से शाम तक मेरे में भी नहीं, शाम होते ही फिर पीपल, मेरा घर ना वो है कि कहाँ चलना है, कहीं मन नहीं कर रहा, सरगम के घर चल लो, वाओ। विल फाइंड एवरीथिंग देयर। इफ यू वांट टू स्लीप, गो फॉर इट। खाना है मिल जाएगा, नहाना है मिल जाएगा, कुछ भी, एनीथिंग यू वांट, आई हैव इट, हाँ, एनीथिंग यू वांट। ये भी अच्छा फीलिंग रहता होगा यार, बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग रहता है मेरे कमरे में कोई ना रहे, दूर दूर तक मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे पूरा पर्सनल स्पेस चाहिए अपना। नहीं, वो तो मुझे भी, मैं इसलिए अकेले रहती हूँ। हाँ। बट शाम होती है ना फिर, डू यू लिव अलोन हियर? यस आई लिव अलोन। तो यहाँ पे तो मतलब तुम्हारी फैमिली यहीं पे रहती है दिल्ली में? नहीं। My dad is in Gorakhpur, my mom Okay. is posted in Bihar.
ओके तो ऐसा कर, बिकॉज जनरली व्हाट यू नो द थिंग आई हैव विद माय फ्रेंड्स इज एवरी मेल फ्रेंड, क्योंकि फीमेल्स का तो इमोशंस बहुत इजीली निकल जाते हैं। एक लाइन बोल दो रोने लगती है, हाँ क्योंकि मैं खुद वैसी हूँ, मेरी साथ वाली भी वैसी है। ओके बट सिंस इट इज़ वेरी हाई टाइम फॉर मेल्स टू ओपन अप, तो आई हैव क्रिएटेड अ स्पेस फॉर माय फ्रेंड्स Okay. जहाँ पे उनको जितना वल्नरेबल होना है वो हो सकते हैं, जितना इफ दे वांट टू गो लो आई विल गो लो फॉर देम, कि एनीथिंग यू वांट टू से उनको सोचना नहीं पड़ेगा ट्वाइस कि शुड आई से दिस और नॉट, दे वॉक इन द डोर, व्हाटएवर दे वांट टू से, कुछ हुआ है, एंजाइटी हो रही है, बीटी हो रही है, I can handle it. They Okay. come to me. They can always come to me. हम लोग फाइनली अभी पहुंच गए हैं जैन चावल वाला पर, कुछ ना कुछ खाते हैं यहाँ पे। ऐसी कौन सी बात है जो हमने अभी तक नहीं की है? कैमरे पे नहीं की है। कैमरे पे नहीं की है। हाँ कैमरे पे तो बहुत सारी बातें नहीं की है हम लोगों ने। मुझे लग रहा है हमारी बिना कैमरे वाली कॉन्वर्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग हुई है ना। What do you want to ask me? आज का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था तुम्हारे लिए? आज का since I've met you या फिर पूरे दिन का? पूरे दिन का। Okay. Okay. Oh God. ये क्वेश्चन पूछ के तो तुमने खुद के ही पाँव पे गुलाड़ी मारी है। So as I told you already. Okay. But I met my ex, right? So it was a good लगा था moment for me. meeting me was No, that the was best. obviously the best moment. But since so when you meet your exes for after a long time, no, breakup के बाद, तो you heal yourself उतना तो कि वो जो hyped up emotions रहते हैं कि गुस्सा था या breakup हो गया इस वजह से जो चिढ़ थी जो वो सब खत्म हो जाता है somewhere you forgive them as well, yourself as well. तो since I'm a content creator ना, तो मैंने बहुत कंटेंट बनाया है उस पे, बनाए हैं उस पे, मतलब I have not said his name or anything, मतलब just as an ex वाला कंटेंट बनता। तो उसमें one story I posted that I was not happy about, मतलब वो मैंने कर दी थी ऐसी मजे में पोस्ट, but then I saw it again and I felt it was too harsh, too rude, and he might have saw it, तो मतलब उसको बुरा लगा होगा। तो अब since कल मुझे वो दिख गया तो मैंने सोचा कि ये बोझ हल्का करते हैं, let me say sorry to him about this। बाकी जो भी हुआ उसमें भले ही रही हो उसकी गलती, but this was my fault। तो I went to him, I said sorry, he accepted it, we talked for a while। तो ये बोझ मेरे जैसे ज़हन से पत्थर उठ गया कि चलो ठीक है, one thing I did good, कि I made amends for that, तो it was a happy feeling for me कि चलो ठीक है, maybe I'm healing myself by that, कि I'm forgiving people who did wrong or I did wrong, so they forgive me। तो धीरे धीरे करके stages by stages हो रहा है जो भी हो रहा है धीरे धीरे। Okay. Yep. अरे क्या चल रहा है ये? लड़कों ने छेड़ा होगा शायद, वो शायद किन्नर हैं सारे और वो लड़कों ने छेड़ा होगा तो वो लड़कों को मार रहे हैं। यही बचा था बस देखना दिल्ली में यही देखना बचा था बस। ये तो चलता रहता है, ये तो रोज का ही है, रोज का है। सीपी में तो ये सब बहुत कॉमन है। सीपी में कॉमन है? हाँ। बड़ा देख के ऐसा सा लग रहा है यार। सीपी में बहुत कुछ होता रहता है, जो चीजें कहीं नहीं होती वो सीपी में होती है। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, मुझे तो लगा था सीपी इज अ वेरी नाइस एंड डिस्क्रीट काइंड ऑफ प्लेस। नहीं क्या बोल के गया है? वो बोल के गया कि पूरी फाइट रिकॉर्ड हो रही है आपके बैकग्राउंड में। बाप रे क्या चल रहा है यार यहाँ पे। कोई आके हमारे पीछे ना पड़ जाएगा, अरे तुम मोबाइल क्यों चला रहे हो? ऐसा कुछ नहीं। See, this is what my life is about. मैं बैठती हूँ, कलेश अपने आप होते हैं। यार ऐसे मत बोलो यार। नहीं, in general कि I'm very self independent, you know, I create problems for myself. You create problems. Boring हो जाएगी वरना जिंदगी। See, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं मन कर रहा मोबाइल उधर कर दूं, लेकिन मुझे मारने लगेंगे वो कि तू रिकॉर्ड कैसे कर रहा है। अरे लद्दाख में हुआ था ऐसा। लद्दाख वो तो चलो मैं मान रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे को पता नहीं था। हम लोग रोड पे थे, ठीक है, मी एंड माय गर्लफ्रेंड वी आर ऑन द रोड एंड हम लोग रिकॉर्ड करने लगे। एकदम से वो चला रही थी गाड़ी एंड मैं एक रैंडम फाइट हो रही थी और मैं रिकॉर्ड करने लगा था। तो मैं रिकॉर्ड कर रहा था और मेरे को पता नहीं था, सॉरी फाइट नहीं, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, और मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो वो एकदम से वहाँ के कैब वाले मेरे पीछे पड़ गए कि अरे तुम रिकॉर्ड कैसे कर रहे हो? अरे मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो बस गाड़ी निकाल रही थी, मुझे लगा कुछ हुआ होगा तो रिकॉर्ड कर रहा था मैं तो खुद को ऐसे करके। तो उससे मैंने सीख ली कि फालतू किसी और की तंगी में रिकॉर्ड कुछ नहीं करना, दूसरों के पछड़े में नहीं पड़ना कभी भी।
क्योंकि यू नेवर नो never कब know वो किसका दिमाग फिर जाए किस बात किसका पे। दिमाग फिर जाए, वो तुम्हारे बारे में बन जाएगी सिचुएशन, और लोग जहाँ पे जो लोगों के कंट्रोल में नहीं था तुम आ जाओगे वहाँ पे। तो इन चीजों से जितना दूर रहो उतना बेटर है। लोग बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं कि सॉर्ट करवा दे, दिल्ली में सॉर्ट नहीं होती चीजें। यहाँ पे तो वो ट्राई कर रहे हैं कि और बढ़ाऊं मैं, 10 लोग और बुला लूं और दिल्ली बढ़ा दूं। पीपल गोज विद लाइक कि बातों से क्या ही सुधरा है, हाथापाई पे आते हैं। ऐसे ही होता है यहाँ पे। तुम कैसी हो, वायलेंट हो या फिर यू आर वेरी काम पर्सन? मुझे देख के तो लगता है तुम बहुत वायलेंट हो। नहीं होए ऐसा कुछ नहीं है, सम डिपेंड करता है सिचुएशन पे। समटाइम्स आई एम वेरी हाइपर एक्टिव अबाउट सम थिंग्स, ओके, समटाइम्स आई एम वेरी काम अबाउट द सिचुएशंस। तो हाँ, मुझे जनरली गुस्सा नहीं आता है, बट मुझे अगर गुस्सा आता है तो फिर वो कोई रोक बढ़िया नहीं से सकता। आता है। बढ़िया तो से आता मैंने है। मारे चाटे वाटे, I've slapped a kid in my college. किड? Kid मतलब वही मेरा बैचमेट अच्छा, ही था। बैचमेट, ओके। और he did some things, मुझे गुस्सा आ गई, मैं धर दिया उसको 2-3। दिल्ली से है लड़की। नहीं हूँ मैं लखनऊ से। उसकी हरकत टोल्ड यू ना, जैसा आप मुझे ट्रीट करोगे आई ट्रीट यू द सेम। ये गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली चीज है। जस्ट बिकॉज यू आर एल्डर देन मी या यू आर डूइंग समथिंग गुड डजंट मीन आई एम गोना इवेंचुअली रिस्पेक्ट यू। Yeah. जस्ट वी टॉक्ड सो मच ऑफ कैमरा। we have हम लोगों ने क्या क्या नहीं बात की है ऑफ कैमरा, मतलब रिलेशनशिप्स से लेके, लाइफ से लेके, पास्ट से लेके, सब कुछ। Okay, tell me why, since you are a man yourself, let me ask, maybe आपके पर्सपेक्टिव से मुझे समझ में आया ये चीज। आने वाला है मेरी तरफ। Okay, tell me why men are tend to think कि if they get into a relationship, चलो मान लो they got into a relationship, ठीक है, it's going happily ever after जो भी है, ओके, हाफ में उनको क्यों याद आता है कि oh my god I'm not lovable? Why do they do this? I'm not lovable. Yeah. कि Okay. मतलब कि I do not deserve this. You're too good. Why it is supposed to be too good? What do you mean I do not deserve this? एक तो ये रीजन हो सकता है कि शायद पास्ट एक्सपीरियंस कुछ रहा हो जहाँ पे उनको लगता हो कि यार इतना अच्छा तो किसी के साथ नहीं होता है। सेकंड थिंग, मैं पर्सनल अगर अपना बताऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं 100% तो मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता अपने अलावा। तो मतलब अगर कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो हल्का सा डर आ जाता है मन में कि यार ये तो फेरी टेल जैसा लग रहा है, या टू गुड टू बी ट्रू है, क्योंकि चीजें बदलती हैं, हमेशा अच्छा तो हो नहीं सकता। Fair enough. आज नहीं बदल रही है तो कल बदलेगी, और तब सामने वाले इंसान ने भी समझना चाहिए कि भाई ठीक है बदल रही है तो अभी हैंडल कैसे करे सिचुएशन, क्योंकि जब तक सब अच्छा चल रहा होता है ना तब तक तुमको रियल साइड नहीं पता चलती किसी सामने वाले इंसान की। जब कुछ बुरी चीजें होंगी या सिचुएशंस खराब होंगी या फिर ऐसा कुछ होगा जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तब एक्चुअल साइड बाहर आती है लोगों की, कि मतलब रियल सेल्फ देखते हो तब ना। Fair enough. तो ऐसा डर सा रहता है हल्का फुल्का कि यार ये कैसे रिएक्ट करेगा, जब ये कैसे रिएक्ट करेगी जब कल को अगर कुछ बिगड़ गई सिचुएशन, तो इसको वो आता है चीजें हैंडल कल करना। पे क्यों नहीं छोड़ते हैं? वो उसको वो सोच के कल का आज क्यों खराब कर रहे हैं सब लोग? I do not get this. If one day you're going all gaga each मतलब Over क्या each बोल रहे other. over each other, ठीक है कि सब बढ़िया चल रहा है, I'm in love, you're in love, and since एक थॉट आया तुम्हें कि fuck ये फ्यूचर में क्या होगा, ये तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, and thinking about that makes you wanna fuck up everything that you have right now. Because we as a man, like me as a man, I feel कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कल को अगर कुछ भी बिगड़ता है तो मुझे आज सोचना पड़ेगा, क्योंकि कल को बिगड़ेगा तो संभालना भी मुझे ही है। ठीक है। इट्स नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी या योर रिस्पॉन्सिबिलिटी Fine. कि तुम सब कुछ संभालो। Yes. तो But it's not yours as well कि तुम भी सब कुछ संभालो. It is supposed to be a 50-50 part, no? ऐसा Yeah, have you heard बोलने that? में अच्छा लगता No. है। Have you heard that but- saying कि 1 + 1 is not 2, it's 11? हाँ, बट ये है ना? बोलने में अच्छा लगता है सिर्फ। कल को जब सिचुएशन बिगड़ती है तो एज अ मैन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर Okay. एवरीथिंग। Okay, let me give you a अदरवाइज scenario. व्हाट काइंड ठीक ऑफ है? अ मैन आर यू? Let's suppose something happened, ठीक है? And your girl is saying कि I'm right here, I'll help you through it, I'll love you through it. Okay. Even if I can't help you or do something about the situation, I'll try to love you through it. Okay. ठीक है? I'll do everything in my power to whatever the situation is उसको solve करने के लिए, solution निकालने के लिए. Now you as a man don't want to take that help, don't want to take that love, don't want to take that affection into your life, and you want to be an avoidant person and say no, I'll do Because it हमको all बचपन से alone. नहीं मिला। So when will you learn? The whole point is that. वही तो मोस्ट मैन वी डोंट नो हाउ टू एक्सेप्ट दैट लव, कि मतलब एकदम से अगर देखो
अगर एकदम से किसी के पास नहीं रही है कोई चीज I get it. और abundance आ जाता है ना, तो we don't know how to handle it. Get it, human nature, ठीक है? Yes. Accepting everything at once is difficult. I get it. Okay. But try क्यों नहीं हो रहा है कि why don't you try to heal yourself so people when people try to love you, you let them. Yeah. Why don't people try कि चलो ठीक है, अगर ये दिक्कत है कि मुझे सब कुछ एक बार में नहीं समझ आ रहा, I'll try to heal myself, I'll work on this part. करना ही नहीं है कि अरे बहुत ज्यादा हो गया छोड़ देते हैं. How is this? It's okay. I understand your feeling. It's okay. It's okay. I understand. I mean, it's very unfair. Since there is therapy, guys, I suggest you take it because आपकी वजह से किसी और को लेनी I पड़ेगी. suggest don't I suggest you. handle it yourself. You can. Of course you can. थेरेपी लोग इसलिए नहीं लेते हैं ना कि पागल हो जाते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि पागल ना हो. सी थेरेपी का मेन रीजन क्या है कि तुम्हारे अंदर जितने भी इमोशंस चल रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मुझे तो फील होता है कि केमिकल रिएक्शन से, इमोशन से सब कुछ चल रहा है एंड वो सारी चीजें इतनी ज्यादा हावी हो रही है तुम पे कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो. एंड यू वांट समवन जो तुमको सुन ले थोड़ी देर, जो तुमको बता दे कि हाँ ठीक है ये नॉर्मल है, होता है. कहीं ना कहीं तुमको उन चीजों से हल्का सा बाहर लाके तुमको समझाए कि नॉर्मलाइज हो सकती है चीजें. जस्ट थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा सोचो, इस वे में सोच सकते हो, बस पाथ दे देते हैं वो. Exactly. तो मैं बोल रहा हूँ खुद निकालने की कोशिश करो यार. बोल रहा हूँ ट्राई करो, करते रहो. मतलब हाँ, नॉट फॉर एवरीवन ऑफ कोर्स, कि सबके लिए नहीं, निकालो. लेकिन एज अ मैन तो मैं बोलता हूँ लड़कों को तो कि भाई नेवर गो टू थेरेपी अनलेस तुम्हारा कुछ बहुत ही बड़ा ट्रॉमा है, जो ऑफ कोर्स देन, या फिर कोई मेडिकल रीजन है, देन गो फॉर इट. अदरवाइज भाई बी अ मैन, संभालो, जिंदगी तुम्हारी है, तुमको संभालना पड़ेगा. आज कोई और संभालेगा, कल कौन संभालेगा? That is, इतना सुन लिया ना मैंने ये सेम चीजें. I have heard this so many times, but I don't know why you मैं बोल be रहा a हूँ, man. चलो का आज- मतलब ये क्यों है कि you have to be strong enough. Yes, you have to. ठीक है, you have to. Society has conditioned I you कि get it. तुमको strong होना पड़ेगा, I तुमको get it. रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी, That तुमको also I get प्रोवाइडर it. बनना पड़ेगा. Yes. अगर यहाँ पे लड़ाई होती है तो आई शुड बी द वन जो सब कुछ संभाले, यहाँ पे Yes. तुमको हार्म ना हो. Okay. ये कंडीशन किया हुआ है हमको. ठीक है. तो एज अ मैन आई शुड बी एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ एवरी सिचुएशन, जहाँ पे Yes. तुमको कभी भी ऐसा ना लगे कि यार ये कैसा लड़का है यार मेरे साथ, इसको यही नहीं आ रहा है ये संभालना. I agree. वो बहुत बड़ा डर है हर I लड़के के मन agree. में बिल्कुल कि होता है. अगर इफ दे आर विद अ वुमन, तो उस लड़की को कभी भी ये फील ना हो कि Unprotected यार ना ये feel हो, हाँ हाँ, कि ये कैसा लड़का है यार, ये इसको ये नहीं आता. तो Fair वो सीखने के लिए हमको करना पड़ता है ये सारी चीजें. बिल्कुल सही है. पर इसमें मैस्कुलिन एनर्जी एक अलग चीज है ना, ये मैस्कुलिन एनर्जी में आता है आपका, ठीक है, कि यू हैव टू बी पावरफुल, प्रोटेक्टिव, दिस दैट. Why do you have to do all that pretending to be okay? बिकॉज कौन सुनने वाला है? That is the problem. कौन सुनने वाला That is the है? problem. मतलब इंडिया में तो कुछ चल रहा है अभी. आप बीच में आ रहे, कैमरा में आ रहे हैं आप, थोड़ा सा पैसे हैं नहीं हमारे पास. हम क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि पैसे नहीं है. क्या बोलती? अच्छा भगाया, लेकिन बढ़िया भगाया. नाइस. Talent है, talent. टैलेंट बहुत अच्छा था ये. नाइस. मैं नहीं बोल पाता ये, मैं तो ऐसे ही बोलता नहीं जाओ. अरे ये बच्चा है एक बार मेरे पास, वो बहुत बदतमीज बच्चा था, ठीक है. और वो आता मेरे पास, लाइक दीदी 10 रुपए दे दो. मैं गुस्से में थी, मैंने कहा तेरी माँ देके गई थी, मुझे 10 रुपए वापस करूँ. मैं तेरे ठीक है दीदी, ओके. जाता हूँ. हाँ, सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ मतलब यहाँ पे तो तुम देखोगी तो 80% तो लड़के सिंगल ही है. हाँ ठीक है, तो वी केम बैक टू दिस पॉइंट कि कौन सुनने वाला है. कौन सुनने वाला है? नाउ Now, अगर कोई सुनने वाला now. मिले, why do you fuck it up by saying कि मैं डिजर्व नहीं करता? क्योंकि एक्सेप्ट करना It डिफिकल्ट comes है ना, back. बहुत डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना. That is what you have to work अच्छा, on. आज की तारीख में तुमको क्या लगता है, गर्ल्स हैव मोर ऑप्शंस और गाइस हैव मोर ऑप्शंस? Everyone depends on their personality and this and डिपेंड्स, that. ऑफ कोर्स डिपेंड्स कि सबके किस पास तरह है. के लोग हैं. Yep. बट यार लड़कियों के पास तो हमेशा ऑप्शंस रहे हैं. Always it has been.
क्योंकि दुनिया पागल है इसी के पीछे, छोटी छोटी चीजों को इतना हाइप कर रखा है कि ओ ये हो गया वो हो गया, ब्रास्ट्राफ दिख गई तो फक ये लड़की की ब्रास्ट्राफ दिख गई है तो क्रेजी हो गया एकदम। तो ऑब्वियसली पीपल आर मतलब उनको ऐसा फैंटेसाइज कर दिया है बहुत ज्यादा कि ओ लड़की नहीं हो गई पता नहीं क्या हो गई एकदम अलग ही क्रिएचर निकल गया है ट्रीट करना चाहिए यार। एंड मुझे लगता है कि गर्ल्स भी वही बोल रही है कि हमको नॉर्मल ट्रीट करो यार, हमको इतना ज्यादा वो मत करो यार कि हमको बाहर निकलना परेशान हो जाए हम। इस चीज से वो भी डर गई है, मर्द भी डर गए हैं कि दोनों को समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ठीक है, तो ऑब्वियसली गर्ल्स के पास हमेशा ऑप्शंस तो रहे ही हैं, स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है ये, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। Where were you going with this question? वो मैं ट्रैक अलग था, बट या यू आर राइट कि मतलब बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर दिया है इन चीजों को। Exactly. Now, what else? I guess we should close it now. नहीं, कोई बढ़िया कॉन्वर्सेशन की नहीं है हमने अभी ऑन कैमरा। वो तो है, ऑन कैमरा क्यों नहीं है? नहीं है। यहाँ पे कहीं मिलेगा क्या बॉटल? ठीक है, अभी थोड़ी देर में चलते हैं। हाँ, खत्म करके निकल ही लेंगे। नहीं। Okay. So when do you feel the most yourself? कि मतलब तुमको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, it's just there comfortable. In my bed, in my room. In your room. Yeah, and generally मैं ऐसे ही जिंदगी जी रही हूँ कि मुझे किसी को कुछ प्रूफ नहीं करना है, because सबसे बड़ा लोगों का वो क्या था, प्रेशर क्या होता है कि पेरेंट्स को प्रूफ करना है। ठीक है, मेरा ये खत्म हो गया है। क्योंकि somewhere I know कि no much how much I do, how much I earn, how much I do things for myself, it's never gonna be enough for them. It's never gonna be enough for anybody in life, not even for me sometimes. तो मैं कर लिया मैंने उस चीज के लिए, मैं भले उस मोमेंट में खुश हूँ, that is more than enough for me. तो I be myself everywhere. अगर मुझसे आप randomly भी मिले ना भी, I am myself only. I am not pretending to be anything. अगर ये videos मेरे friends भी देखने वाले हैं, they'll think कि हाँ there's nothing like she doesn't talk like this या ऐसा कुछ। उनको पता है मैं यही बातें करती हूँ, वो मुझसे ऐसे ही मिलते हैं, मैं ऐसी ही हूँ। The people I am comfortable with, उनके साथ तो मैं हूँ ही वैसी। जिनसे मैं नहीं भी मिलती हूँ, I don't want to pretend. Why would I? If you don't like me, fine by me. If you like me, good for me. I mean, what's the problem? But फिर दिक्कत ये हो जाएगी ना कि if I start pretending to be somebody you like, how much will I pretend? एक महीने 2 महीने, exactly. कितने वक्त तक कर पाओगे? तो उसके बाद फिर जब मेरा असली वो आएगा, वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो वो मुझे बुरा लगेगा ना। वो तो तुम्हें अच्छा लगा पर ये वाला मुझे बुरा लगेगा। तो why don't I just be myself and let you decide if you like it or not? मतलब all by yourself। क्योंकि let's say कि you like lilies, ठीक है, and there's the beautiful flower, मान लो रोज कह लेते हैं, the most beautiful rose you have ever seen is right there, but you like lilies, you'll pick lilies, उसमें रोज का कोई दिक्कत नहीं है, it's just you like what you like, so your heart wants what it wants. So I'm just always myself, but हाँ, since the most at that moment is in my room, 2 AM, गरम पानी, कैमोमाइल टी, मेरे बगल में गजलें चल रही होती हैं, कव्वाली चल रही होती है, डिम लाइट्स, तो तुमने कर ही रखा है, कोजी मेरा कमरा है, डिम लाइट्स, and I'm just sitting there in my thoughts, writing something or just sitting there singing the song, best part of my day. क्योंकि मैंने ना, मेरी एक लड़की से बात हुई थी रिसेंट में, बहुत पहले, तो we were talking about some random things and we talked and उसने मुझसे एक बात कही जो स्टक कर गई मेरे साथ। She asked me कि if I say to you कि every day all your life you only have to come home to yourself, would it make you scared or happy or calm? So that was something कि exactly every day for all my life I have to come home to myself only. I should make myself and my space इतना calm, इतना प्यारा, इतना peaceful कि मुझे कहीं से भी भाग के आने का मन करे, जब मुझे घर जाने का मन करे तो मैं खुद के पास वापस आ सकूं, तो मुझे अच्छा लगने लगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ है यार ये। बातें काफी अच्छी करती हो तुम। ऐसी थोड़ी राइटर हूँ। नाइस। पूरी दुनिया का एक ही वीक पॉइंट है इमोशंस। निकलवा लिए तो फिर जय है आपकी। ये तो मतलब बोल रखा है लोगों ने कि men don't cry, all of mine did. They should also, मतलब at some point you have to let it out. I have, एक तो पता नहीं क्या मेरा टाइप ही यही है या I have built this way. I generally choose emotionally unavailable men.
Unavailable men. For Okay. some reason, some part of them is not ready to do this and open up. And I tend to वो लड़कियों में होता है ना Bob the Builder वाली personality, I can हम fix करवाएंगे। हाँ, but मेरा fixing वाला नहीं है क्योंकि they are perfect the way they are. हाँ। But एक वो होता है कि मुझे समझ नहीं आता कि why are people so fucking scared of their emotions? They're pretending all the time, this and that. So every time this recent person I met, my ex, he was also this kind of person कि मुझे नहीं बताना किसी को, मुझसे नहीं शेयर करना, क्यों करना है, मैं बाहर छोड़ के आ रहा हूँ सारी चीजें, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, खुश हूँ, क्या दिक्कत है? आई एम लाइक नहीं, यही तो दिक्कत है कि तुम ये कैसी बात हुई कि सब छोड़ के आके मेरे साथ खुश रहोगे तुम? मैं सिर्फ हैप्पी टाइम्स के लिए नहीं हूं ना यहाँ पे, आई एम हियर फॉर द बैड टाइम्स एज वेल. टेल मी व्हाट हैपेंड, आई वांट टू हियर अबाउट योर डे. व्हेन आई से आई वांट टू हियर अबाउट योर डे, आई डोंट मीन कि हाँ बढ़िया था, आज ऑफिस गए, ये क्या हुआ, नहीं, मुझे You डिटेल want में to- बताओ No. कि क्या गॉसिप हुई, क्या बात हुई, व्हिच पार्ट मेड यू लाफ, We don't like to talk about all those things. मतलब somehow आदत नहीं है. somehow आदत नहीं है. सेकंड चीज मतलब मुझे नहीं वो गो थ्रू करना है वापस, जो दिन गया है वो. आई डोंट वांट टू फील वापस से जो जितना कुछ, अगर मैं तुमको बता रहा हूँ तो मैं वापस जी रहा हूँ वो मोमेंट्स. आई डोंट वांट टू डू दैट अगेन. एक बार निकल गया बस, अभी जाने दो उसको, मतलब ऐसा फीलिंग रहता है मोस्टली. Yeah, but isn't that a beautiful thing कि let's say कि you went through a day with a day, ठीक है? You came home, somebody asked what happened today. You tell them a part where you felt very happy, you laughed about a joke जो इतना funny था कि you couldn't stop laughing. This is good. Then there's this part जिसने आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, या made you cry, या made you angry, frustrated, any feeling. Now when you go through that feeling ना, दूसरी बार में, because वो उस टाइम पे आप वो नहीं फील कर रहे ना, तो दूसरे टाइम पे you realize कि why it happened, why I felt like that, was it something inside me or not? But I went to therapy for a time, ठीक है? Okay. And I was very suicidal and this and that कि self harm तक मैं पहुंचने वाली थी, मैं गई नहीं, इसलिए मैं Okay. थेरेपी चली गई कि भाई नहीं कटना अगर तो नहीं इतना है ज्यादा है तो फिर तो जाना ही हाँ. चाहिए. तो I went there and the first thing she told me was कि she gave me a feeling chart. Okay. There was a feeling wheel. उसमें हर इमोशंस लिखे हुए थे जो हम फील करते हैं पर हमें उसके शब्द नहीं पता, व्हाट एग्जैक्टली टू कॉल इट, व्हाट एम आई फीलिंग. तो वो फीलिंग व्हील थी. शी आस्क्ड मी कि जब भी तुम्हें कोई ऐसा नेगेटिव थॉट आए ना जो तुम्हें गुस्सा दिलाए, फ्रस्ट्रेट कराए या फिर रुला दे, राइट दैट थॉट डाउन. राइट कि उससे तुम्हें कौन सी फीलिंग जनरेट हुई है. डिड यू फील फियर, डिड यू फील अबैंडन्ड, डिड यू फील एंग्री, डिड यू फील सैड, हर्ट, व्हाटएवर. यू राइट दैट एंड यू टेल मी कि इसका अगर तुम रैशनल, क्योंकि लेट्स जस्ट एग्जांपल कि मैंने आज अपने दोस्तों के साथ में बैठी थी बट दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस, तो मुझे उस बात से गुस्सा आ गया ना, क्राइड अबाउट इट, ठीक है. नाउ आई रोट कि मैं नोबडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मी, नोबडी इज गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्यू. उससे मुझे हर्ट फील हुआ, उससे मुझे अनअंडरस्टूड फील हुआ, मुझे लगा कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मुझे उससे बहुत एबनॉर्मल फील हुआ, डिफरेंट फील हुआ. नाउ द रैशनल थॉट ऑफ इट कि मे बी उन्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए नहीं दिख रहा बिकॉज दे आर नॉट इन द सेम सिचुएशन एज मी. मे बी क्योंकि मुझे जो 6 दिख रहा है आपको 9 दिखेगा ही ना, मैं आपको खींच के लाऊंगी तब यू सी कि हाँ ये 6 है. वहां से विल कीप आर्ग्यूइंग कि नहीं 6 है 9 है 6 है 9. तो वो रैशनल थॉट हो गया एंड आई केप्ट डूइंग दैट, स्टिल डू दैट समटाइम्स जब बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है फीलिंग्स. आई की ओपन दैट फीलिंग चार्ट एंड आई फाइंड व्हाट एग्जैक्टली इज दिस बॉदरिंग मी, दिस पेन इन माय चेस्ट, and then I think about it and then I calm myself down कि no, this is just a fear talking, this is just the abandonment issues, this is just the pain. You're not like this, you do not think like this, do not be like this, Sargam. We have came so far, we did this so well, अब जाके बर्बाद नहीं करना है. तो think about it, you can be better than that. Share that feeling chart. कैसा था you ना can वो वाला process? find Share it it with in me. Google. Maybe I'll share. Oh, it's on Yeah, Google. you will Google feeling wheel Okay. and it will come. Feeling? Wheel. Wheel. Yeah, Okay. feeling wheel. I'll share it इसके साथ में ना. Yeah, Because do it's a that. good thing. If it works for you, then it might work for some more works people. very well. So क्योंकि मुझे उस टाइम पे आपका इतना गुस्सा है, हाइप अप होता है ना कि यार क्यों नहीं समझ रहा, कोई दिमाग खराब है, लोगों को दिखा तो रही हूँ मैं रो रही हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं पेन में हूँ, तो मैं दिख क्यों नहीं रहा है. एंड पीपल टेंड टू फाइट ओवर दिस कि तुम्हें मेरा पीओवी ही नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या बात करूँ तुमसे. बट देन यू हैव टू थिंक अबाउट at कि that time I go silent. दैट इज नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी. Because what I feel is अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नहीं समझा रहा, तुमको जब समझ में आएगा तुमको ही समझना पड़ेगा. Point सही है. मेरा कितना भी बोलने पे तुमको नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहे हो. सही आई विल है. गो साइलेंट. जैसा मैंने अभी तुम्हें बोला भी कि 1-2 बार जब झगड़ा हुआ, आई वेंट साइलेंट. आई वाज साइलेंट फॉर डेज, वीक्स. आई वाज लाइक मेरे बोलने से तो तुमको नहीं समझ आएगा क्योंकि तुम ऑलरेडी हम ऑपोजिट साइड पे खड़े हुए हैं.
जैसे तुमने बोला 6 और 9, तो तुमको तो गलत ही लगेगा, तो मैं कुछ भी बोलूँ तुमको सही नहीं लगने वाला, तो मैं शांति रहूंगा, तुम समझो, वक्त लो, जब तुमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं इसके पर्सपेक्टिव से ये सही बोल रहा है। जाकिर खान की एक लाइन है ना कि अगर कोई लड़की तुमको पसंद करती है, प्यार करती है ना, तो तुमको उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना कभी भी कि यार ये ऐसा था वैसा था, वो उसके मन में, मतलब वो तुमको छोड़ के जाने के रीजंस नहीं बनाएगी। Exactly. वो उसके मन में तुम्हारे साथ जो झगड़ा हुआ है उसका भी तुम्हारी साइड से भी झगड़ा कर चुकी है, हाँ हाँ कि मतलब ये पॉइंट है, ये ठीक ही कर रहा था यार, ये गलत तो नहीं ही था, तो मतलब वो खुद को समझा चुकी है वो चीजें भी, अगर वो तुमको पसंद करती है। और अगर उन्होंने जाने का डिसाइड कर लिया तो फिर तुम कुछ भी बोल लो, वो जाएंगे ही जाएंगे। I mean, that is what love is supposed to be, na? Yeah. To choose somebody when you don't understand them as well, yourself as well. Yeah. Especially then, even then. Even then. Even then. Even then. Even then. Sometimes people don't tend to understand what I'm saying and what I'm feeling, but ये है ना कि you said something, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या चल रहा है आपके दिमाग में, why are you telling me all this? But I can try, no? कि चलो ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी तरह से ये वैलिड लग रहा है ना, कैन योर हार्ट स्लीप एट नाइट थिंकिंग कि तुम्हारे हिसाब से सही था, तुमने सही किया, इफ दैट्स द केस गो थ्रू विद इट। मेरा तो यही है कि इफ आई कैन स्लीप विद इट आई विल बी ओके विद इट। अगर मुझे रात भर वो खाता रहे वो चीज कि नहीं यार नहीं करना था, ये हो गया वो हो गया, आई वोंट डू इट, माय हार्ट कांट, इट्स टू वीक टू हैंडल दैट कि नहीं करना चाहिए पर कर दिया है। आई डू दैट, I reconnect with people a lot. मैं सिर्फ जिनको मैं छोड़ चुकी हूँ या जो छूट गए या जिन्होंने मुझे छोड़ दिया, if I see them, if I talk to them, I talk to them very nicely. वापस वैसे जैसे बात करते थे, क्योंकि फीलिंग्स खत्म नहीं होती ना, खत्म नहीं होती, वो ओवर पावर हो जाती है, खत्म नहीं होती। तो if you meet old friend, ex, somebody you used to like, love, whatever, then it never ends. तुम उनसे 10 मिनट बात करो, that comes out, वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा निकल आता है कि यार तुम अच्छे इंसान थे यार, we fucked it up but you were a nice person, you gave me so many happy memories, thank you so much for that, we had our differences but बढ़िया था जो भी था, thank you for coming in my life। तो वो बहुत जरूरी होता है कभी कभी, मेरे लिए तो है, मैं पूरी तरह से कभी नहीं छोड़ पाती किसी को भी, कभी कभी बहुत बुरी चीज है, बट समवेयर आई फील लाइक एक ना एक दिन तो सब खत्म है ना, होने ही वाला है, तो क्यों मैं रखूं इस नोट पे? अगर मैं कर सकती हूँ सब कुछ सही इतनी तरह से कि अगर तुम मेरे बारे में सोचो तो तुम्हें गुस्सा ना आए, तो मैं कह कि चलो हो गया जो हो गया, बट शी मेड मी हैप्पी एट अ पॉइंट, आई एम ओके विद दैट। तो एटलीस्ट वो डिफरेंसेस उतने ज्यादा ना रहे, कभी अगर मिले तो हाय तो बोल दे। हाँ, और मेरी बहुत टॉक्सिक चीज भी है कि मुझे हमेशा ना एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, भले 2 साल बाद मिले मुझे, पर मुझे चाहिए कि ओके वी एंडेड ऑन अ गुड नोट, कि ठीक है, नो ग्रजेस, कभी मिलोगे तो मैं मुस्कुरा के हाय बोल दूंगी, आके चाय पी लेंगे 10 मिनट, चले जाएंगे अपने अपने रास्ते, बट आई विल थिंक अबाउट इट एंड आई विल बी स्माइलिंग अबाउट इट, एटलीस्ट नॉट हर्ट, नॉट पेनफुल, जस्ट हैप्पीनेस कि हैपेंड, एटलीस्ट इट हैपेंड इन लाइफ, एक्सपीरियंस हो गया उस चीज का। लाइटिंग सब जा चुकी है वैसे, on wow, whenever you feel heightened about something, या कोई चीज आपको बॉदर कर रही है इन लाइफ जनरली, नॉट इन लव रोमांस बट जनरली भी, करियर रिलेटेड हो गया, लाइफ रिलेटेड, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, तो if at this exact moment, if your inner child, if your 10-year-old self could have spoke about this situation, talk to you about this, what would he say? 10-year-old self. Yeah, मतलब क्यों the child you buried inside, the emotions you buried inside, वो बचपन वाला self जो होता है ना, if he could talk to you at this moment, okay, about everything that you went through and going through, what do you think he would say to you? 10-year-old नहीं, but अगर 15-year-old है, हाँ, तो I would say कि यार don't think about people that much, लोगों को फर्क नहीं पड़ता, जितना जल्दी हो सके थोड़ी सी समझ डेवलप कर लो ताकि तुम लोगों से बात कर सको, क्योंकि बहुत वक्त लग गया मुझे यहाँ पे पहुँचने में, जहाँ पे इतने साल तक मैं अकेला परेशान होता रहा। तो अगर मैं अभी कुछ भी बोल सकूँ तो मैं यही बोलूँगा कि यार अकेले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रीच आउट, बस थोड़ा सा हिम्मत करके रीच आउट कर लो, है लोग मिल जाएंगे, सही लोगों तक पहुँच जाओगे, बस रीच आउट कर लो। क्योंकि मुझे लगता था कि यार
कौन कौन बात करना चाहता है मुझसे, कौन है यार, कोई नहीं है, किसको फ़र्क पड़ता है मुझसे, उस थिंकिंग में ही मैं लोगों से बात नहीं करता था, ना नए दोस्त बना पाता था, या फिर तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोल पाऊँगा तो मैं यही बोलूँगा कि यार बन जाएंगे, हो जाएगा, ट्राई करके देख ले। हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है, हाँ मतलब ऐसा है कि लोग क्या सोचेंगे वो मन में आएगा, लेकिन कुछ नहीं सोच रहा है कोई तुम्हारे बारे में, 5 मिनट बाद किसी को याद भी नहीं रहने वाला है तुम एग्जिस्ट भी करते हो, तो कर लो, जो मन में आ रहा है कर लो, जिससे मन में आ रहा है बात कर लो, जैसे आ रहा है बात कर लो, नहीं भी होगी तो एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन रहेगा कि ट्राई किया। यस, रिग्रेट्स नहीं रहेंगे। रिग्रेट नहीं रहेगा कि यार काश मैं ऐसा कर लेता तो शायद मेरे वो इतने सारे जो साल निकले हैं कुछ अलग ही होता वो, और शायद मुझे इतना कुछ अकेला नहीं देखना पड़ता, जहाँ पे हो सकता है कि कोई अगर साथ में होता तो मुझे वो सब देखना ही नहीं पड़ता। वो भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब सिचुएशन ही नहीं बनती वो वाली जहाँ पे मुझे लगता है कि यार इतना अकेला हूँ कि दुनिया में मैं ही हूँ बस। I think all can be healed by love. Yeah. Let it be the love inside you, from the outside, from the universe, from a person. It can all be healed by love. True. Okay. So, if I ask you, who are you? Okay. And you cannot answer by your name, your profession, your age. Again, what would you say to me? मैं वो एक दोस्त हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। Oh, that was nice. And if your heart could speak, नहीं। no. If your heart could speak, what would it say to you? To me? Yes. कि थोड़ा सा रुक के जिंदगी एंजॉय भी की जा सकती है, भाग दौड़ में लगे हुए हो। है ना? तुम रुला के ही मानोगी मुझे, मतलब ये कैसे सवाल है, बाप रे। असर कर रही हो तुम मेरे ऊपर अभी धीरे धीरे। Oh God! This is crazy. Okay. And तुम्हारे पास बहुत है ये, हाँ भरे पड़े हैं क्या? I do this, you know. What is it, I यार? love doing this. Okay. I love when people open up to me. I love when they cry. I in want front the of me. list, okay? ऐसा कुछ नहीं I want to है। make other people cry, not me. Okay, पता है जब I was in a relationship and that started from Okay. कि I met a guy, ठीक है? It was one of the very beautiful thing and I met a guy. We started talking and all that. Friends के through ही मिले थे हम, ठीक है? हम बैठ के बात कर रहे हैं. He started telling me about his dad. His dad died out of cancer. तो मुझसे इस बारे में बात कर रहा था. When for some reason I asked him कि when was the last time you cried? I was like, I don't know. I didn't even cry on my father's death. And I'm like, you did not. He's like, no. एक दो आंसू आए होंगे बस. I did not cry. And I'm like, okay. तो मैंने पहले दिन मैं उससे मिली हूँ, ठीक है? पहले दिन की कॉन्वर्सेशन है और मैंने उससे बोला था हाय एक सेकंड, और मैंने उससे पहले दिन बोला था कि आई डोंट नो तुम इस चीज़ को किस वे में लेने वाले हो, बट एक दिन मैं चाहती हूँ मैं तुमको रुला के जाऊँ एंड आई वॉन्ट यू टू क्राई हार्ड एज यू कैन, एज हार्ड एज यू कैन, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम रो एक बार. And in the relationship, we talked so much, and so much happened. Unfortunately, his mother also died because of cancer. Okay. Luckily, I'm so happy that I was there at the time because he needed somebody, and I was really happy to be there. And this time he cried. He cried all his heart out, and I was happy for one fact कि fuck, finally I let it happen. He could let it all out in front of me. I'm that person. क्या एक वो रीजन हो सकता है कि उसको लगा कि यार ये सिचुएशन में ये मुझे संभाल लेगी, हाँ. इसीलिए he was able to cry. Exactly. Because there was a safe space, no? बनाया मैंने वो कि तुम आओ, तुम रो, तुमको रोना है, तुमको हर्ट हो रहा है, तुम छोटी सी बात पे रो, तुम्हारा लोवर नहीं मिल रहा, आओ तुम रो मेरे पास बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है. Most of the men don't have that safe space. Yeah. जिसकी वजह से उनको लगता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है. इसीलिए और मैं ये कहती हूँ काफी हद तक, काफी टाइम तक मैंने भी वही फील किया है, जिसकी वजह से जो विच आंसर्स योर क्वेश्चन के क्यों हमको लगता है कि सब कुछ हमको हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त तक ऐसा कोई था ही नहीं जिसके पास हम बैठ के ये बोल पाए कि यार तुम मेरा सेफ स्पेस हो, तो मैं इस वक्त पे रो लेता हूँ ताकि मुझे पता है कि तुम संभाल लोगी.
मेरा एक दोस्त है, द 911 आई टोल्ड यू अबाउट। हाँ तो मेरा फर्स्ट ब्रेकअप, मैंने ना ब्रेकअप किया ही नहीं था, मैं डर रही थी करने से। ओके आई गॉट चीटेड ऑन, आई गॉट बिट्रेड ट्वाइस थ्राइस, 5 बार हुआ। आई डिड नॉट ब्रेक अप बिकॉज उसकी इतनी पहला था ना, एंड पहले में इतने ओवर इमोशंस होता है ना, आई वाज लाइक कि भाई इसके बिना तो मुझे रहना ही नहीं आता, मैं तो मर जाऊंगी, मैं कैसे जीऊंगी। तो फर्स्ट टाइम में लगता ही हाँ, है, वो पहली फील बार में होता है लगता कि ही यार है। यही तो है जो है। लेट इट कॉल्ड स्टूपिडिटी, जो भी है, ठीक है। और मेरी बहुत हालत खराब, एंड आई मेट दैट फ्रेंड ऑफ माइन एंड ही आस्क्ड मी कि क्या बन गई हो तुम ये नहीं थी, क्या हो गया तुमको, कहाँ चली गई हो कहाँ तुम। And I'm like, I can't do this. Why? I cannot. I'll stay जैसे ही रखेगा मुझे, मैं नहीं रह सकती ऐसे, मैं नहीं रह पाऊंगी। And he just said one sentence every time I was scared of doing something in life. What was it? He just always said to me कि जिंदा रह लोगी? I said हाँ। कह रहा तुम जिंदा रह लेना, जीना मैं वापस सिखा दूंगा। And he did that always. Every fucking single time that guy was there and he made me go through all of it with him, and I'm still here, he's still with me. I'm so happy, so grateful. मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, मैं उसको टेक्स्ट करती हूँ, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं समझाएगा, सिर्फ वो एक शब्द लिखेगा, एक सेंटेंस लिखेगा, and that will make me calm as hell. मैं अभी शो करके आई, आई वॉज हार्ट ब्रोकन, मैं नहीं खुश थी उसके बारे में, मतलब इट वॉज अ वेरी गुड शो, आई शुड बी हैप्पी अबाउट माई करियर लाइफ एंड ऑल दैट। मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था, उस पर सब फोटोज थी कि ये करना होगा ना, उसमें से एक चीज पूरी हुई थी आज रात, पर मैं खुश ही नहीं हो पा रही थी। एंड आई टेक्स्टेड हिम कि आई डू नॉट फील हैप्पी, इट्स जस्ट देयर इज सम एम्प्टीनेस, आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट दिस। आई शुड, मेरे पापा ने मुझे बोला है कि आई एम प्राउड ऑफ यू, जब सपना होता है सबका, आई शुड बी सो हैप्पी, आई शुड बी ऑन द 7th आसमान पे होना चाहिए मुझे, भाई मैं नहीं हूँ खुश। He did not make me understand कि नहीं हो जाओ, कोई बात नहीं हो जाएगा। He just said to me कि तुम्हें पूरा नहीं लग रहा है, पर तुमने एक हिस्सा पूरा किया है खुद का। तुम्हारे दीवार पे जो तस्वीरें लगी हैं उसमें से एक चेकलिस्ट हुई है ना, धीरे धीरे कर रही हो, कर तो रही हो ना, यहीं पे खड़ी हो ना, जिंदा हो ना, गई तो नहीं ना गई, एक हिस्सा हुआ है, हुआ तो ना, किया ना, तुमने किया ना, 0 से उठ के आई ना तुम। मैंने कहा हाँ बात तो सही है। कह रहा एग्जैक्टली, एवरी टाइम यू फील लो कि यार वापस पीछे चले गए, यू हैव टू रिमेम्बर कि तुम कभी तो 0 पे थे ना, तुम अगर वहां से आ गए तो एक दो स्टेप पीछे जाके वापस करने में क्या ही दिक्कत है, यहाँ से भी आगे चले ही जाएंगे। एग्जैक्टली, कौन काउंट कर रहा है, नोबडी इज कीपिंग काउंट, इट्स जस्ट यू एंड योरसेल्फ। डू इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट टू डू इट, जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। तो मेरा पूरा यही रहा है, एवरी टाइम आई got out of house, I stay in a flat, ठीक है, I stay in a flat and I don't think of it as a flat, मैं उसको घर ही बोलती हूँ। That is home to me, that 1 BHK flat is more home to me than my house ever was, my family ever was, that is home to me, my friends coming home, मेरे लिए हनी जिंजर का ग्लास लेके अगर मैं रो रही हूँ, कुछ नहीं बोले, नो, कुछ ऐसा सांत्वना नहीं देना है, it's just them listening my rants all over again, bringing that गोलगप्पे वाला पानी मेरे लिए कि तू खा ले तो ठीक हो जाएगी, I know, bringing that one thing that makes me happy, playing that one song that makes me happy। तो इसलिए मेल फ्रेंड्स की लाइफ में हमेशा एक फीमेल होनी चाहिए, फीमेल्स की लाइफ में हमेशा वो मेल दोस्त बहुत जरूरी है। पीपल डू नॉट गेट दिस, लड़कियां आजकल उसमें कूल बनने, बहुत पिक मी साउंड करेगा ये, बट ये हो गया है आजकल कि वी डू नॉट नीड मैन, एक्चुअली वी समवेयर डू। और लड़के भी यही है कि वी नॉट नीड, यू डू भाई, you do, there is some part of you that needs, अर्धनरेश्वर कहावत नहीं है। लड़के तो मेहनत भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि आगे जाके एक अच्छी डिसेंट लड़की मिल जाए। I know। मेहनत ही इसलिए कर रहे हैं, काम ही इसलिए कर रहे हैं। मैंने आज तक किसी लड़के को ये बोलते हुए नहीं सुना कि हमको किसी लड़की की जरूरत नहीं है हमारी लाइफ में। कभी मुझे नहीं लगता कभी कोई लड़का ऐसा बोल सकता है। कोई अगर बोल भी रहा है तो झूठ बोल रहा है कि हमको किसी लड़की की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स हर लड़के को एक लड़की की उसकी लाइफ में जरूरत है भाई। ताकि वो लाइफ एंजॉय कर सके। Exactly। वरना हमको नहीं आता लाइफ एंजॉय करना, हमको बस काम करना आता है कि हाँ भाई लग जाओ काम पे, तुमको ये करना है, ये करना है, वो करना है। तो that is true। Men teach surviving to the female, women teach nurture them, no, you teach expressing feelings, emotions, बहुत जरूरी है। let it be as a friend, girlfriend, जो भी है, एक फीमेल फिगर सबकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, होना ही होना चाहिए। Because when you break up, you come running to a female friend कि भाई प्लीज बता क्या करना है, क्योंकि लड़कों का ये भाई दारू चलो पी लेते हैं, ब्रेकअप हो गया आपका, मुबारक हो आपको, बहुत बढ़िया बात है। नहीं ये तो मैं इस मामले में तो मैं तो ब्रेकअप के बाद तो नहीं, फीमेल फ्रेंड के पास तो बिल्कुल नहीं। मतलब मेरा एक्सपीरियंस अगर मेरा जैसा रहा है, हाँ मतलब नॉट फॉर एवरीवन अगेन कि मतलब सबका एक्सपीरियंस वो नहीं रहता है,
बट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि मतलब मैं तो उसको एज अ फ्यूल यूज करता हूँ एग्रेशन को, कि मतलब मैं अभी तो मेरा काम तगड़ा चलने वाला है, मतलब अब तो मैं अगले 1 महीने में इतना काम करूंगा जितना मैं 6 महीने में करता हूँ। जाकिर खान ने कहा था ना, क्या? तेरी बेवफाई के अंगारों में लिपटी रही है रूह मेरी, मैं इस तरह आग ना होता अगर हो जाती तू मेरी। इट इज मतलब वो भी सही है, हाँ बट यू ऑलवेज नीड टू हैव अ स्पेस जहाँ पे तुम वल्नरेबल हो सको। तुम्हारा खुद का हो, किसी और का घर हो, किसी और का बालकनी हो, कुछ भी हो, it just has to happen, has to be there. It's very important in life to survive. You need that one person जिसके पास तुम सुबह शाम दिन रात भाग के जा सको। मेरी जिंदगी में कुछ भी होता है, I call 2 people. One is my sister, सगी बहन नहीं है, but more than enough. And second is this 911 person of mine. मेरे लिए वो पर्सन मैं ही हूँ। मैं भी थी, पर फिर एक टाइम के बाद मैं जब बिस्तर पे ऐसे फर्श पे पड़ी होती हूँ, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे होते, कांप रही होती हूँ मैं, आई नीड समबडी टू होल्ड मी, आइदर विद अ वॉइस, आइदर विद हैंड्स। कि मेरे एक टाइम पे तो इतनी गंदी आदत लग गई थी कि मैं अकेले सो नहीं सकती, मैं आई नीड फिजिकल टच, इवन इफ यू कैन नॉट होल्ड मी व्हाइल स्लीपिंग, मेरी पिंकी फिंगर पकड़ के सो जाओ, बट आई नीड टू मतलब फील कि समबडी इज देयर, आई एम नॉट अलोन इन दिस हाउस। कि मैं आंख बंद करूंगी तो सब गायब नहीं हो जाएगा, कोई छोड़ के नहीं जाएगा मुझे। तो वो होता है, फेज होता है, बहुत जरूरी होता है ना, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट एज वेल। लेट्स ये जो तुम क्वेश्चंस कर रही थी ना, वो एक बार कंटिन्यू करें क्या, क्योंकि बहुत हैवी थे वो क्वेश्चंस मेरे लिए, तो वो कभी रिकॉर्ड नहीं किया है मैंने आज तक, मतलब मुझसे कोई इतने हैवी क्वेश्चंस कभी नहीं पूछा है। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू दैट फॉर अ फ्यू मिनट्स? ओके। What is that one thing you want to let go from inside? From inside me. Let go. हाँ, ये मैं पता नहीं क्यों ये क्लियर आंसर आया है कि मतलब सब कुछ मुझे संभालने की जरूरत नहीं है। ये मतलब Pressure, the heaviness. प्रेशर के कुछ चीजें, भले वो छोटी ही चीजें क्यों ना हो, कोई और टेक केयर कर सकता है उन चीज़ों का, मतलब हर चीज़ मुझे देखना, हर चीज़ मुझे नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी की सिचुएशन में कैसा होता है कि मेरा फोकस हर चीज़ पे जाता है, बार बार बहुत भटकता है मेरा फोकस। हम छोटा सा भी कुछ काम कर रहे होंगे ना, तो मैं बार बार उस चीज़ पे भी देखूंगा, अगर तुम मेरे लिए कुछ काम कर रहे हो तो मेरी नज़र बार बार उस चीज़ पे जाएगी कि यार ये ठीक से कर रही है कि नहीं, अरे यार इसने ये वो, मैं बता दूं क्या इसको। You want your mind to shut up for a second, no? I get it. I totally get it. I really want कि कभी तो इसको शांत करके, मैं सच बताऊं तुमको, मैं डेली उठता हूँ ना मॉर्निंग में, उसके 1 घंटे पहले से मुझे उठने के बाद पता चलता है कि मैं पिछले 1 घंटे से रैंडम चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो कि शायद कल हुई होंगी या आज होने वाली है या फिर पहले कभी हुई होगी। मैं ऐसा मेरे साथ, मुझे याद ही नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ है कि मैं आराम से शांति से उठा हूँ, मतलब हमेशा मैं 1000 थॉट्स के साथ उठता हूँ कि अरे ऐसा ऐसा आज ये, आज वो, कल वो करा था, अभी ये करना है, अरे ये किसी का, ये कौन। तो आई डोंट रिमेम्बर द लास्ट टाइम आई गॉट अप एंड आई वाज लाइक हैप्पी अबाउट इट कि हाँ यार चलो शांति से उठा हूँ मैं। आई डोंट नो कब हुआ था वो। You know, and that is a very beautiful feeling to give someone that to, कि इनका दिमाग 2 मिनट के लिए बंद हो जाए, चुप हो जाए। My ex used to come home and he used to tell me कि मैं तुम्हारे पास नहीं रुकूंगा आज। I'm like क्यों, क्या दिक्कत है? And he used to say to me कि यार क्योंकि मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना, मैं सब भूल जाता हूँ, मेरे दिमाग में काम, दुनियादारी, इस रूम में एंटर के पहले जैसे तुम दरवाजा खोलने वाली हो तब तक मेरे दिमाग में ऑफिस की बॉस से गाली का ये चलता रहता है। As soon as you open the door and you hug me with that childish giggling voice, I forget everything, कि मेरे दिमाग में नहीं चल रहा होता फिर कुछ कि क्या हुआ आज, किसने गाली गाई, क्या हुआ। I tend to forget everything and I'm just myself and I'm happy and I said and that is a problem for you like हाँ मुझे काम करना है, मैं काम भूल जा रहा हूँ, मुझे क्या करना है। I'm like okay, ये भी नहीं होना चाहिए। I get it. But are you comfortable with me posting about your ex? ये not a problem. मैंने खुद इतनी बातें कर ली हैं अपने चैनल पे। Okay. अच्छा हाँ ये exactly. right. Okay. उनको ये इस चीज से दिक्कत होती होगी आई थिंक, बट सिंस दे चोज मी एज देयर गर्लफ्रेंड एट अ टाइम, तो मेरा सिंपल से है कि मुझे प्यार जब हुआ ना तब मैंने पूरी दुनिया को बताया। आई रोट शायरीज, आई पोस्टेड थिंग्स, आई रोट कोट्स,
everything about me speaks love at the time I'm in love. Okay. My body language, the way you see me dress up. कि मेरा ये होता है कि अगर मैं प्यार में होती हूँ ना तो मैं बिंदी लगाने लगती हूँ, मैं तैयार ज्यादा होने लगती हूँ, मैं काजल ज्यादा लगाती हूँ, तो ये साइंस है मेरे प्यार में पड़ने के. आई टेंड टू डू ऑल दोस थिंग्स. ठीक है. तो जब मैंने प्यार होना पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताया है, एंड दे वर सीइंग देमसेल्व्स देयर लव लाइफ थ्रू मी, why am I supposed to hide this part? क्योंकि तुम भी तो कभी ना कभी vulnerable हो ना. उनको ये तो लगना चाहिए कि भाई कोई मेरी तरह किसी कोई बर्बाद हुआ है, मैं अकेले नहीं हूँ. And people tend to, yes, exactly, the raw me. तो है, उनको दिक्कत होगी कभी ना कभी इस चीज से, हुई होगी, I'm very sure. But since I told them about this, about the love, and you were happy about that, they are supposed to know about the heartbreak as well, the pain you caused me, the pain I caused you. Go through everything what I'm going through. Exactly. Through my eyes. कि अब चल रहे हो मेरे साथ, तो चलो फिर, तो चल लेके चलूंगी मैं. Okay. What part of you as a child you are still trying to work on? As a child? What do you mean by that question? Okay, see. मतलब ऐसा कुछ रहा होगा ना बचपन से that has been triggering you या made you very conscious about self, shamed, made you feel shame about it, anything like that? Nothing. कुछ ऐसा नहीं था. 2015 तक तो मुझे पता ही नहीं था लाइफ में क्या करना है या मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना भी है कि नहीं, या नथिंग. आई वाज जस्ट, मतलब वो भेड़ चाल बोलते हैं ना, तब तक तो मैं यही कर रहा था कि मतलब मुझे बस घर वालों ने बता दिया कि ठीक है कॉलेज कर लो, जॉब कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो मैं वो सब कर रहा था. तो तब तक तो मुझे कुछ भी रियलाइजेशन नहीं था. मतलब मैं बस उसी दौड़ में दौड़ रहा था. कुछ नो सेल्फ अवेयरनेस, जीरो, कुछ नहीं पता था क्या करना है. शायद वो 2015 में जब ब्रेकअप हुआ था एंड उसके बाद जब मैंने रनिंग स्टार्ट किया, तब वो थॉट्स डेवलप होना शुरू हुए थे. मतलब मेरी शुरुआत थी, अगर तुम पूछोगे ना, तो मेरी लाइफ एक्चुअली 2016 में शुरू हुई है, जहाँ पे मैं थोड़ा सा सेल्फ अवेयर हुआ हूँ कि यार जिंदगी जी जा सकती है. ज़रूरी नहीं है कि तू एवरेज बन के रह जाए बाकी लोगों की तरह, कुछ अलग किया जा सकता है. और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा, खुद को घिसना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगा. क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखता था और बोलते थे हो जाएगा, हो जाता है, करते हो ना तो हो जाता है. और वो जाकिर खान ने एक बात भी कही है ना कि मतलब हाथ पांव मारने वाले का कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है. तो और मैं बहुत सक्सेसफुल लोगों को सुनता था, देखता था. मतलब मेरे दोस्त ज़्यादा रहे ही नहीं है, ठीक है, हमेशा से. तो ये 2016 के बाद जब रनिंग करना स्टार्ट किया तो और कम हो गए थे, क्योंकि मैं सुबह शाम रनिंग करता था, तो मैं किसी के साथ हैंग आउट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ना डिनर्स पे ना पार्टीज. आज भी नहीं जाता मैं, ना डिनर्स ना पार्टीज, कहीं नहीं. मुझे कहीं नहीं मिल पाऊंगा मैं तुम्हें, अगर तुम. अब मैंने भी बंद कर दिया है बहुत टाइम से. हाँ, मैं तो कभी गया ही नहीं. तो मेरे कभी इतने ज्यादा कनेक्शंस या फ्रेंड्स रहे नहीं. तो मैं सोचता था यार क्या करें, कैसे करें. तो मैं फिर सुनता था इन लोगों को जो सक्सेसफुल बने हैं, जिनकी जिंदगी उन्होंने जी है और जहाँ पे उन्होंने टॉप पे पहुंचे, और उन्होंने फिर बताना शुरू किया कि भाई क्या क्या फेस किया है उन्होंने. तो एक चीज कांस्टेंट है जो निकल के आई है कि अकेलेपन से तो गुजरना पड़ेगा अगर तुम जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हो. क्योंकि वो अकेलापन तुमको ही फेस करना है, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. और वो अकेलापन अगर एक बार फेस करना सीख गए तो फिर लाइफ में जब जब वो सिचुएशन आएगी तुम डर के भागोगे नहीं किसी की तरफ कि यार मुझे ये नहीं पता कि ये हैंडल कैसे करना है. Exactly. तो वो मैंने किया है. वो मैंने 8-10 साल तक वो अकेलापन फेस किया है. वो इतने डेस्परेट अटेम्प्ट्स के बाद अब जाके मैं खुद के वो कंफर्ट से बाहर निकल के लोगों से बात करता हूँ कि हाँ अब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. मैं इतना डेस्परेट रह चुका हूँ ना कि मतलब तुम जो देख रहे हो कि अरे ये हमसे रैंडमली बात करने आ रहे हैं, कितना डेस्परेट है, तुमने देखा ही नहीं है मैं कितना डेस्परेट रह चुका हूँ भाई. तुमको पता ही नहीं है. ये तो तुम मतलब मेरा बेस्ट देख रहे हो. तुमने मुझे मेरे वर्स्ट में तो देखा ही नहीं है कि मैं कितना डेस्परेट था, कि मैं रोड साइड पे फुटपाथ पे नीचे बैठ के बस किसी से बात कर रहा हूँ रैंडमली. मतलब तुम तो फिर भी अभी देख रहे हो कि यार मैं आके तुमसे हाय हेलो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ. अरे मैं तो हिंदी में वहाँ पे बैठे हुए मजदूर तक से बात की है मैंने रोड पे बैठे हुए कि भाई क्या चल रहा है, तेरी सब लाइफ में ठीक है क्या. मतलब कहाँ से आ रहा हूँ मैं, वहां से. ये तो मुझे कुछ भी, अभी मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई रिजेक्शन फील नहीं होता क्या. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं
कि रिजेक्शन फील नहीं होता क्या यार, तुमको बुरा नहीं लगता कोई रिजेक्ट कर देता है, बुरा नहीं लगता कोई इग्नोर कर देता है? अरे तुमने देखा ही नहीं है मैं कैसे कैसे सिचुएशन में रिजेक्ट हुआ हूँ, कहाँ कहाँ पे मुझे बुरा भला बोला गया है, कहाँ कहाँ पे मैं इतना डेस्परेट था कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे बस एक इंसान चाहिए पास में कि यार बस 2 मिनट चलो बात कर लेते हैं यार, क्योंकि मैं इतना खाली फील कर रहा था ना कि मतलब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं हूँ ना अभी भी इंसानों के बीच। मतलब कोई आके ये क्यों नहीं बोल रहा कि अरे अभिषेक कैसा है यार, हो जाएगा जो भी चल रहा है ना, हो जाएगा एक दिन, तेरा भी हो जाएगा। तो वो किसी ने देखा ही नहीं है, तो फिर अब उनको लगता है कि यार इसको फील नहीं होता। अरे बहुत फील कर लिया, तब जाके ऐसी स्टेज पे पहुंचो कि अब ये छोटी मोटी चीजें हैं ये तो मेरे लिए अब, कि कोई रिजेक्ट कर दे रहा है वो तो बहुत छोटी चीज है, कोई बात करने से मना कर दे रहा है दूसरे से कर लेंगे ऐसा है क्या फर्क पड़ता है? अरे तुम नहीं बात करोगे, तुम्हारे जैसे 100 और हैं अभी दुनिया में, और मुझे अब पता है कि कैसे अप्रोच करना है, पहले पता नहीं था ना कि मुझे उन 100 लोगों तक पहुंचना कैसे है। अब तो मैं जानता हूँ वो 100 लोगों तक पहुंचना कैसे है। तुम मना कर रहे हो तो क्या हुआ, मैं अगले से बात करूंगा, वैसा सा हो गया। It is very important to learn how to live alone. Yeah. There was this phase in my life, बहुत आया है तो बहुत ही बार आया है, पता नहीं हर बार ही आ जाता है कहाँ से, कि I didn't feel like I love myself. I tend to love other people. I am ready to love other people. I can give all to them. But when it comes to me, I feel like I haven't been loving me anymore. I don't love myself. But then somebody said this to me. Somebody asked me, do you love yourself? And I said, I don't know. I try. So when I said I try, she asked me, where do you think the trying comes from? So I said, what do you mean? You already love yourself. If you're trying, that is the love. Trying is love. Wow. I said, okay. Okay. That's a beautiful thought. Trying is love. You're trying, that means you are loving yourself. You are loving yourself. Yeah. वरना तुम क्यों ही करोगे? Just give up. So yes, trying is love. That's a beautiful thought. I know. When you feel like nothing is going right, and because अभी आए हैं ये दिन कुछ, मैं अभी recent में ही आया कि I could not even get out of bed, brush my teeth, and I feel like okay, now I relate why people die in depression, why people kill themselves, but I can do this for myself, and then I wake up and then मैं अपने आप को शीशे में देख रही हूँ and I'm feeling sad for myself कि I was not this person. What have I become? ये तो नहीं थी मैं वो थी जो बच्चों से मिलती हूँ, उनको खिला, बच्चे they come to me, dogs come to me, I love flowers, I love छोटी छोटी चीजें मुझे खुश करती हैं. I'm that person. I'm not this. I cannot be this. I cannot stay like this. Some people are out there. एक इंसान भी है मुझे सुन रहा है ना, मेरी वजह से खुश है वो. I'm gonna be that person today. I wake up, भले मैं 2 घंटे में मैं बैठी रहूंगी, कंटेम्पलेट करती रहूंगी कि उठती हूँ 5 मिनट में उठती हूँ 5 मिनट में उठती हूँ, पर I'll get up. But you will get up. I will get up. Okay. Because okay, so I do poetries, no? There's this poetry I wrote. One was about यही कि किसी टूटे हुए घर के बच्चों से पूछोगे ना कि क्या चाहते हैं वो, जब उनकी जिंदगी में सब्र होगा, देखना सबकी ख्वाहिश यहीं से शुरू होगी कि जब हम बड़े होंगे ना एक दिन हमारा एक घर होगा. तो दिस आई रोट, इट वेंट बहुत अच्छी चली है, एंड सो मेनी पीपल डीएम्ड मी, so many little kids, because I was there too. When I was 12-13 years old, I was trying to kill myself because it was so fucking irritating, frustrating कि मम्मी पापा समझ नहीं रहे हैं कि बच्ची हो कोई बात नहीं, होता रहता है. सबको ये लग रहा है कि पेरेंट्स ही तो हैं, मार देते हैं, डांट देते, क्या हो जाता है. बट आई एम सीइंग थिंग्स ना, मेरी आंखों के सामने जो हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा वो हैंडल. मैं क्या करूँ, तुम तो समझ ही नहीं रहे. तो आई हैव बीन देयर. तो अगर मुझसे कोई 12-13 साल की भी छोटी बच्ची आके 15 साल की बोलती है ना, दीदी मेरा हार्ट ब्रेक हो गया, I don't give her that shit कि अबे यार तुम तो बच्ची हो, अभी तो बहुत देखना है. I know how it feels जब तुम्हें कोई नहीं समझ रहा हो and you feel like कि यार पर मुझे तो फील हो रहा है ना, तुम्हारे लिए मैं बच्ची हूँ. I feel pain, I feel hurt. Who is gonna listen to me now? So I got to those people as well. Then I wrote something about कि you know how in life we always try to achieve some things to make ourselves proud. इसको जीतना है, वो ट्रॉफी जीतनी है, इतना पैसा कमाना है. But इस भाग दौड़ में, इस कश्मकश में हम भूल गए हैं कि कुछ जो हमारे बचपन के सपने थे वो पूरे हो गए हैं ऑलरेडी. We forgot that. मैं एक दिन कमरे में बैठी थी and I realized कि मैं बाहर जाना था मुझे, and I opened my door. मैं रात को निकली 2 बजे, मेरे दोस्त है कि चल चाय पीने चलना है, ठीक है. And I was on a scooty and I started crying out of nowhere. And he asked me what happened.
I'm like, this is what I always dreamed about. This कि is मैं what I अपने cried हिसाब about. से कि एक दिन होगा जब जिंदगी- मेरा घर होगा, मैं एक मकान में रह रही होंगी, मेरा आधी रात को मन करेगा, मैं आधी रात को चाय पीने मेरा जाऊंगी, जब मन करेगा, मेरा जब जहाँ मन करेगा मैं Exactly. जाऊंगी। मैं अपने तरीके से कपड़े पहनूंगी, मैं अपनी तरह से सजूंगी, मेरा झुमके पहनने का मन होगा, मेरा लिपस्टिक डार्क लगाने का मन होगा, मैं लगाऊंगी, मैं अपनी तरीके से चलूंगी, मैं अपनी बोलूंगी, अपना खाऊंगी, जो होगा मैं करूंगी। And I'm fucking doing that. Why I'm not thinking about that? मैं उस बारे में प्राउड क्यों नहीं हुई आज तक? मैंने मोमेंट क्यों नहीं दिया खुद को ये बोलने का कि सरगम तूने कर लिया यार, तूने पूरा नहीं किया बट तूने आधा कर आ लिया। गए हो, बहुत You आगे आ गए हो। survived that fucking shit, that hellhole you once cried in. कमरे में कोने में बैठ के भगवान से जब बोलती थी, भगवान जी प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरे को नहीं रहना अच्छा नहीं लगता। You did that all by yourself, no one was there. So be fucking proud of it. इस पोएट्री पे I got a text from somebody. He said to me कि I don't know how true it was, but इस बारे में तो कोई झूठ नहीं बोलेगा. He said to me कि I was on the verge of killing myself. I was literally on the roof, and I just opened my Instagram to text somebody, and I just saw your reel on my feed, and I stopped and I listened to it. और उसमें था कि जाओ खुद के लिए 2 मिनट खुद से बातें करना, चाय पी लेना, something like that. It's like I went to the kitchen, I made tea for myself, I sat there, I drank that tea, I listened to that video, and I'm ready to live again. And I was so happy. He legit cried on a call. I called him. He legit cried on a call. कह रहा है, thank you so much. You wrote that. You never know कि तुम कहाँ पे इम्पैक्ट, किसकी लाइफ पे इम्पैक्ट ला रहे Exactly. हो। मुझे इतने बड़े बड़े DMs आए ना इस घर वाली पोएट्री पे, और जितनी बार मैंने पढ़ी है, एक DM पढ़ा मैं 15 मिनट रोई, दूसरा पढ़ा फिर मैं 15 मिनट रोई, तीसरा पढ़ा फिर मैं 15 मिनट रोई। वो इतने स्वीट थे, वो इतने प्यारे पैराग्राफ्स थे, इतने सुंदर थे कि भाई तुमने वो बोल दिया जो कोई समझ ही नहीं रहा है। बिकॉज जब तक ये पेरेंट्स वाली चीज इतनी हेक्टिक है ना कि जब तक आप फेस नहीं कर रहे हो, सबको लग रहा है ठीक है झगड़ा करते हैं, मार देते हैं, पीट देते हैं, बहुत कैजुअल है। द पीपल हु आर बोर्न एंड बॉट अप इन अ ब्रोकन हाउस होल्ड, जहाँ पे पीपल सी हिटिंग देम ईच अदर एंड दिस एंड दैट, कभी भी किसी बात पे आवाज उठ जा रही है, तुम कांप जा रहे हो किसी बात से, तो यू नो हाउ ट्रिगरिंग इट इज। मेरे रिलेशनशिप्स में ये डर रहे नहीं कि मैं चीट हो जाऊंगी, मेरे डर रहे नहीं कि मैं रिलेशनशिप्स में चीट हो जाऊंगी या मुझे कोई छोड़ के चला जाएगा, वो तो ठीक है, वो तो रहता है। मेरा सबसे बड़ा डर था कि मुझ पे आवाज नहीं उठानी। तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना, बैठो मैं बात करूंगी, बताओ किस बात पे गुस्सा है, मैं सॉरी बोलूंगी, तुम आवाज नहीं उठाओगे। बिकॉज ये रैंडम है मेरा, अगर कोई रैंडम अभी आप मुझे हल्का सा ऐसे तेज आवाज में से थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन में बात करता ना, आई स्टार्ट क्राइंग हियर ओनली, मुझसे हैंडल ही नहीं होता, मेरे लिए इतना ट्रिगरिंग है वो, इतना ज्यादा। Because you have seen that in childhood. बचपन से आई हैव सीन दैट। मेरे घर में आई डिड नॉट टॉक टू माय डैड, he just screamed at me. That was the communication, end of it. And that's why when he said I'm proud of you, I did not feel it because it felt so fucking fake to me कि ठीक है यार, बोल दिया आपने, माइक था आपके पास, लोग थे, 10 लोग खड़े थे, बोलना था आपको, अब मैंने परफॉर्म किया है, आप खुश हो, दुनिया खुश है उस बारे में, you had to say it. But I did not feel that कि अगर आपने मुझे बोल दिया एक टाइम पे कि जब तुम कुछ करके आओगे तब तुम्हें प्यार करेंगे, तो फिर मेरे लिए ये आई एम प्राउड ऑफ यू मैटर ही नहीं करता ना। मुझे आपकी जरूरत तब थी जब मैं कुछ नहीं थी, जब मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, जब मुझे नहीं समझ में आ रहा था। You did not come to me, you did not talk to me, you did not ask me how are you doing. So, and since people tend to figure this out in another way कि पैसे तो भेज रहे हैं ना, तेरी सारी ख्वाहिश तो पूरी हो रही है, तेरे को ड्रेस चाहिए तो दिलाई कि नहीं दिलाई, तेरे को 7,000 का ये चाहिए था, तेरे को 10,000 का ये चाहिए तो दिलाया कि नहीं दिलाया। भाई कंपनसेशन थोड़ी है ये, पैसे का क्या करूं मैं। आई नीडेड माई डैड, आई नीडेड हिम टू बी देयर कि अगर मेरी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो, I got molested once. I wanted to call somebody. I cannot call my dad. पहला ये होगा लड़का कहाँ से आया, पहला ये होगा कि क्यों मिलने गई थी, क्यों दोस्त बनाए तुमने, क्यों बात हुई। तो मेरी जब जिंदगी में सबसे ज्यादा हालत खराब हुई है, I could not call that one parent of mine कि पापा ऐसा हो गया, मम्मी ऐसा हो गया, क्योंकि मुझे पता था सवाल बहुत आएंगे। तो इसलिए मैंने वो दोस्त बनाया। मेरी फैमिली वो नहीं है जो हुई थी पहले से थी, मेरी फैमिली वो है जो मैंने बनाई है। Those 5 people I have in my life, that sister, that friend of mine, those 5 people are my family. मेरा जिस दिन घर होगा, जिस दिन मैंने सब कमा लिया, मैं सब उन पे खर्च करूंगी, सब उन पे उड़ाऊंगी। वो मुझसे जन्नत मांगेंगे, मेरे हाथ में होगी, मैं उनको हाथ में थमाऊंगी। वो मांगे बस एक बारी, क्योंकि वो तब थे जब कोई नहीं था, जब मैं भी नहीं थी मेरे पास, तब थे वो। तो बहुत जरूरी लोग हैं वो, ऐसे होना चाहिए। बिकॉज खून तभी रहता है जब अगर आपका है चल रहा है सही है, नहीं तो भाई फैमिली आर दोज पीपल whom you choose। एक वो है जो बन के आई है, एक you choose by yourself।
जो तुम्हारे बच्चों की आंटी बनेगी, अंकल बनेगी, जो उन्हें दारू पीना सिखाएंगे, जो उन्हें गालियां देना सिखाएंगे, those are the most important people. Friends में फीमेल ने कहा था ना, relationships tend to come and go, but this is for life. That is for life. People are supposed to be like that. I can see your watery eyes, Sargam. I know. I can see yours too. Oh, it's 11:55. We have been talking for so long. Yeah, God. but it's good to let it out. It's good, no? It's good. See, I have that effect on people. But it was really nice talking to you. Same here. Yeah, I really enjoyed our conversation. Me too. Yeah, I would love to do it again if we ever meet Hit again. me up with me when you're we'll when again you're talk ready. about Yes, things. We'll again talk about what is going on in your मैं life. नए my traumas life. लेके आऊंगी। बिल्कुल। I hope कि अब तुम्हें कोई भी ट्रॉमा ना मिले। नहीं, अब जो तो भी I मिले hope तुम्हारी लाइफ में अच्छा मिले Same goes for you. और अच्छी चीजें हो तुम्हारी लाइफ में, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हो तुम्हारे अब। I hope you heal from the part you don't think needs healing. I hope you do. तुम्हारी बातें ऐसी लग जाती हैं। maybe at some point I would want to feel those things. Maybe not right now. जहाँ पे मैं एक दौड़ में लगा हुआ हूँ कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी नहीं तो कब, तो उस दौड़ में हूँ अभी मैं। बट आई ऑल्सो वॉन्ट कि एट सम पॉइंट उन चीज़ों से ऊपर निकल पाऊँगा मैं कभी। I said once कि चाहे तुम्हारा दिल 1000 दफा टूटे, चाहे तुम बर्बाद होते होते रह जाओ, पर अगर जिंदगी के किसी भी मोड़ पे मोहब्बत तुम्हारा दरवाजा खटखटाए, हमेशा दरवाजा खोल देना। Because you do not know what form love comes in. Yeah. Sometimes it's a person, sometimes it's a fucking food, sometimes it's flowers, sometimes it's rain, it's a letter, it's a comment, it's a like, it's a subscribe. Yeah. Anything is love. Everything is love. You never know. You never know. तो हमेशा दरवाजा खोल देना. Keep opening that door. Doesn't matter how hurt you were the last time. You always open that door. इसी बात पे thank you so much for talking to me. Thank you for having me here. Let's hug it out. Okay. It was nice meeting you. Same here, Abhishek. Yeah.